Okay, sir. My company today is the Coromandel Future Positive. Its vision is to be the leader of the farm solution business, and its mission is to enhance the prosperity of the farmers through quality farm solution and sustainable value for all stakeholders. The Coromandel International is the part of the group of companies. The main company is the Murugappa. It is providing the services in the four industry: engineering, financial service, agriculture, and other businesses. We will just focus on agriculture for today. In agriculture, it is Perry, Coromandel, and Perry Agro. Perry is also the parent company of the Coromandel International. It provides the products in the division of sugar division, nutraceuticals, and sugar refinery. Whereas the Coromandel is in the business of fertilizer, agri-retail, crop protection chemicals, specialty nutrients, and organic fertilizers. And whereas Perry Agro is the pioneer in the organic tea cultivation. It has the 3,147 hectares of estate, and it produces 13 million kilogram of tea annually, and its whole production is exported in the US, UK, and Europe market. We will further see the product of the company. So first we will focus on the fertilizer the company provides. It has the 5 category to it: complex, DAP, MOP, SSP, and urea. In the complex, first we will understand what is complex fertilizer. Complex fertilizer is the combination of 2 or 3 primary plant nutrients. In that, basically you have to have the 2 primary nutrients combination, chemical combination. So it is the largest fertilizer manufacturer and marketer, and the company also customized of the crop as per the requirement of the soil. Whereas the DAP, which is also known as the diammonium phosphate, diammonium phosphate is the preferred fertilizer and most popular fertilizer in the agriculture market because it contains the 2 main ingredients, that is nitrogen and phosphorus. Before we start, I just want to give the gist about nitrogen and phosphorus. Nitrogen is useful for the green leafy production of the agriculture, whereas phosphorus helps in the growth of the plant, the stems, the cell membrane. And the potassium is useful in the sugar production of the plant, which results into the fruit and vegetables. So nitrogen and phosphorus are considered to be the very important ingredient for the agriculture. MOP, which is just the muriate of potash. It has only one element, that is the potassium. It is ideal for the basil and top dressing. This is also very popular, but most popular is the DAP and SSP. SSP is the single super phosphate. This is also known as the poor farmer DAP because DAP is comparatively costlier than SSP. This SSP contains the 3 major plant nutrients, that is phosphorus, sulfur, and calcium. Phosphorus is the main ingredient. Sulfur and calcium are kind of substitute for the nitrogen, provides the same kind of growth for the growth of the agriculture. It is indigenously available, and supply can be made at the short notice as well. Whereas the urea, which is the most popular and most utilized, we can say, in the farm, which is the 46%, it contains the nitrogen. It promotes the growth of leaves and stem while optimizing the yield and quality. We will see further that the government provides maximum subsidy in urea and DAP, which is actually considered to be the important ingredient for the growth of the agriculture. Company is also into the specialty nutrients. It provides in the segments of crop-specific water-soluble grades, generic water-soluble grades, sulfur-based fertilizer, and micronutrients. It specifically, as per the need of the soil, they provide the specific nutrients as per the type of soil the farm has. Whereas the specialty nutrients and complex do not come under the subsidy plans. The product that the company other provide is the crop protection. It has 6 segments to it. It is bio, fungicide, herbicide, insecticide, PGR, and the technical. Bio is made from the biomass. It is an organic material that is available on the renewable basis, which is basically wood, water, aquatic plants. Whereas fungicide, as the name suggests, it helps to kill and prevent the growth of fungi and their spores. So this is basically help the plant from saving it from the damage. Herbicide, which actually helps in controlling the weed in the plant, which take out the nutrition from the other plants.
and insecticides, which control the insect that can harm the land and production, and PGR, that is plant growth regulators. They are basically helping regulating the plant, because if the environment is not suitable for the plant or the agriculture, they provide as a regulator and help the plant to grow. So it is naturally biosynthesized chemical in plant, influence the physiological process. Further explained here, the plant growth regulators can potentially play a fundamental role in regulating plant responses to various abiotic stresses, contribute to plant adaptation under adverse environment. Technical, well, this is very important, where the company is actually focusing right now. Technical, which is basically, have 4 categories. It provides water stress, insecticide, herbicide, and fungicide. Now, what is technical? It is basically component combination of the chemicals, which are basically work as a raw material for this, product of the company, as well as these technicals can be utilized for the specific purposes. As far as I went through the the chemical report of the technicals, some of them each from each category. So what I get to know that, like for example, for the herbicide, so particular chemical which is utilized for the particular crop or for the particular environment, the particular technicals they produce. So the company is actually focusing on technical, because the company is mentioning that they want to focus on the technical fronts specific to the requirement of the customers, which we will talk about it in further in the growth drivers factor. So basically, the water stress is nothing. It occurs when the demand for the water exceeds the available amount during a current, certain periods, or when the poor quality restricts its use. So technicals are available, which increases the absorption of the water from the land. Well, about the company, in 1906, the parent company Eid Perry started its operation of SSP in Ranipat. In 1961, Coromandel Fertilizer Limited was incorporated by the 2 companies, Chevron Chemical Company and International Minerals, and the Chemical Corporation and Eid Perry Limited. And further, in 1981, the Murugappa Group acquired the majority shareholding of the Eid Perry, and that's how it becomes the major shareholder of the Coromandel International as well. In 2003, Farm Inputs division of Eid Perry merged with the Coromandel, as the Coromandel was focusing on the agriculture front of the company. And in 2005, there was a strategic investment in Foskor in South Africa for sourcing of the phosphoric acid, where the company is major producer of the phosphatic fertilizers, and the company is focusing on, because as the 100% import is done for the phosphoric acid, because it is made from the phosphoric rock. So they have to assure the volatility of the prices in the market. So they have the strategic investment in South Africa for the same. In 2006 to 2007, there was an investment in Ficom Organic Limited to expand its agrochem manufacturing footprint, which is basically the crop protection front of the company. Started its first rural retail in Andhra, and now the company has 750 plus stores in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. In 2010, the expanded agrochemical formulation presence through acquisition of Basura Biotech. Means this is how the company has entered into the biotechnology front of the market. Whereas in 2011, the expanded agrochemical export footprints and technical manufacturing through acquiring Sabero Organics. Sabero Organics works as a subsidiary of the company in the different various markets like South Africa, America. So that's how they have their distribution centers as well as the manufacturing plant in different countries. Whereas in 2013, acquisition of Liberty Phosphates helping the commissioning at Kakinda to expand its phosphatic fertilizer capacity, commissioning of joint venture plant at Tunisia for manufacturing of phosphoric acid. So the company is majorly focusing on the production of phosphatic fertilizers and phosphoric acid. This is one of the reasons that is like muriate of potash, MOP, SSP, DAP, all urea as well. And complex fertilizer also contain the phosphoric acid. So that is why it is a main ingredient for the company.
In 2014 to 2019, joint ventures with the Yanmar Mitsui for providing the farm mechanization solutions, acquired the biopesticide business of Eid Perry to expand its presence in the biological segments, and forward integration through expansion of phosphoric acid capacity at Vishakhapatnam. So they have been making an capex in the Vishakhapatnam for the further production of the sulfuric acid, which is the investment of 400 crores. We will see that in the capex plan. Here are the retail. The company is also having the retail networks. It is of 750 plus stores, 1,000 crop advisors and marketing team working directly with 3 million farmers, and entire range of agri inputs and services are provided. Just not the company's product, they also provide the other products as it is in a retail business, and provide services to the farmers directly. It has a closer linkages with the farming community. It has started retail businesses in 2007, established a network of 750 plus outlets across Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka. It has covered the center of 30 to 40 villages and catering to the 5,000 farmer families. Directly reach to the 3 million farmers, and it has a product and services which it provides to the retail is like product, farm advisory, soil testing. It's like on annually basis it provides like 50,000 soil tests, and farm mechanization. Well, it has a joint venture with Yanmar Mitsui to enable this, introduce the technologically superior mechanization solution. The company has not mentioned much about it, but actually it is helping the farmer to farm the land, the mechanization which can test the soil solubility and the requirements. So these machines are the joint venture with the Yanmar and Mitsui. The custom hiring and service center have been acting as a farm machinery bank. They offer land preparation, sowing, spraying, harvesting services through these centers. Here is just about the company's plants, like 7 fertilizer plant related to SSP, fertilizer plants related to complexes, and the crop protection plant as well. It is also including the DAP, but they are more focused on in the SSP plants because SSP is the most utilized after urea and DAP in the market, because SSP is quite less costlier comparative to the other two fertilizers. Well, as usual, I already mentioned all these things. It has a presence across the 81 countries and 2,000 plus strong market development team. Well, here I wanted to mention it has 7 state of R&D laboratories, 3 for the crop protection, 3 for the crop fertilizers, and 1 in the bioproducts. At 80,000 plus tons of manufacturing capacity of the company in terms of crop protection, and 4.5 million ton of manufacturing capacity per annum for the fertilizers. Here is the Coromandel fertilizers. It has the 36% market share for the unique products. Well, here it includes the complex fertilizers and there's a special nutrients fertilizers, whereas it has 4.5 million tons of capacity overall, and it has 93% capacity utilization, and major share is of the NPK, whereas 15.4% of market share currently right now in the market. It has went down over the years because the company's focus has also changed over the period. Crop protection, we can see it has a 10,000 plus dealers, 80,000 plus capacity, and 60 plus brand. It provides 1,000 plus product in the market, whereas it is the 3rd largest mancozeb manufacturer globally. It is the main ingredient for them for right now, but we can see here that it is a mixture of many fungal diseases in wide range of field crops, fruits, nuts, vegetables, and ornamentals. But there is a risk of the ban because in Europe there was a conversation about it that the mancozeb is not good for the health of people, and because of that its utilization in the agriculture farm is risky. So there is a risk related to the ban. The company is also into 3 technical and 2 formulation facilities. Well, formulation is the formulation of the mixture of technicals, and manufacturing capacity is across the 6 plant location. Company provides B2B and B2C both in the market. Biologicals, well, it is very small segment for the company right now. It is focusing on the azadirachtin manufacturing facility in the world. It is like number 1 in providing this
bio bio ingredient. It is nothing. It is an extract of the fruit from the neem tree, which is largely known in India. It is known as commercial insect growth regulator that controls the metamorphosis process as the insect passes from the larva stage to the pupa stage. Meaning it basically kills the insects and work as a biopesticide. It has a rich product pipeline, and they are focusing on the strong R&D for the azadirachtin because it is highly demanded in the market, as it is more safe comparatively, as it is extracted from the neem trees, and its manufacturing plant is Tamil Nadu. Highest purity level is provided by the company, and it has 2 years of shelf life. They basically have the presence in the USA, Canada, and Europe. Well, before we go further, I just wanted to talk about the subsidy system because the company has 72% of the subsidy-based product and 27 to 28% of non-subsidy-based product. So subsidy do play a very, very vital role in the revenue of the company. So just wanted to give a gist how this subsidy has increased, like from 18.789, it increased to 91.96 in 2022. And the subsidized rate of each product, like urea, it is 266 minimum retail price, and the subsidy provided per bag is 2,183. So you can see that basically the higher subsidy is provided in urea and DAP and comparative to MOP and NPK. Further, mentioning about the subsidy, Ministry of Chemical and Fertilizer has issued a report related to it. Into 2021 to 2022, it is like it's in crores, so it is 5,65,000, and later it become 4,65,000. In 2022-2023, it become 11,84,000 because of increase in the raw material cost of the agriculture inputs, and then it is further is going to decrease in 2023 and 2024. The reason I'm mentioning this, because as the subsidy will go down, the company's revenue will also fall down. I'll talk about it in the other slide right now, but here we will see like percentage of subsidy of total nutrients has gone up in FY 2022 to FY 2023. I mean, like initially it was just 27 to 28%, but now in FY 2022 it was 40.54, and in 2023 53.33. Means the percentage of subsidy provided by the government was huge, and because of that the revenue has increased. It was not because of the growth in volume or anything, it is because of the increase in prices and percentage. Yes, sir. One question: what does this mean? Percentage of subsidy of total nutrient and other allied businesses. What is the numerator? What is the denominator? Okay, it is जो total nutrients and allied businesses है, which include fertilizers, all the fertilizers. Correct. Phosphatic fertilizer, MOP, SSP, DAP, and complex as well. हाँ. हाँ. नहीं तो उसका मतलब क्या है इसका, मतलब ये परसेंटेज क्या है उसका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताओ एक बार कि व्हाट इज द परसेंटेज, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? इसमें मैंने जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है वो न्यूमरेटर है. ओके. एंड इट इज डिवाइडेड बाय जो टोटल रिवेन्यू इस बिजनेस से आया है, फर्टिलाइजर से. अच्छा, टोटल बिजनेस से जो ओके जो रेवेन्यू इनसे आया. फर्टिलाइजर बिजनेस है, क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं इंक्लूड किया है बिकॉज सब्सिडी इनके सिर्फ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर अलाइड बिजनेसेस पे मिलता है. हाँ, बट एक बात बताओ, जब ये लोग बिल कर रहे होंगे फार्मर को, ये तो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे ही बिल करते होंगे, राइट? यस सर. तो तुम्हारे न्यूमरेटर में वो बड़ा वाला फिगर आ कैसे रहा है? मतलब दैट इज द इंपोर्ट प्राइस और समथिंग इंटरनेशनल प्राइस आता है या मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सब्सिडी को नेट ऑफ करके जो बैलेंस बचता है उतने पे ही बिल करते हैं, राइट, फार्मर्स को. तो वो डिनोमिनेटर का फिगर क्या है एक्चुअली, लाइक हाउ इट्स द नॉन सब्सिडाइज्ड प्राइस? एक्चुअली सर उनका जो टोटल रेवेन्यू है ना, व्हिच इंक्लूड्स द सब्सिडी. अच्छा, ओके. हाँ, जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें सब्सिडी इंक्लूडेड है. तो वो लोग ऐसे रेवेन्यू को ऐसे दिखाते हैं, पहले नॉन सब्सिडाइज्ड दिखाते हैं, उसमें से सब्सिडी नेट ऑफ करते हैं. तो मैंने टोटल लिया है सर. ओके ओके. I have a question. तो यूरिया का जो प्राइस है that is capped. So for example, government can say कि 1,000 rupees में across the country यूरिया का per kg होगा. per say 10 kgs होगा 1,000 rupees, right? But the production cost can vary based on the raw material import cost.
So for Yes. example, इनको यही 1000 का यूरिया बनाने के लिए they are putting in, I mean, they are buying raw material and energy and import, I mean, whatever is the processing cost of worth, almost say 10,000 rupees, Mm-hmm. right? And government is sort of giving 90% subsidy Hmm. so that urea prices do not fluctuate, which is Yes. an input for the farm, right? Yes. Yes. यही basically है, right? Yes, sir. And so this number that you show, 27%, is basically that 9,000 divided by the total amount of all businesses, माने fertilizer businesses and allied business, मतलब इसमें crop protection भी है क्या? नहीं, अलाइड बिजनेसेस मतलब न्यूट्रिएंट्स होता है, अलाइड बिजनेसेस लाइक वो लोग जो यू नो कैसे एक्सप्लेन करूं, दिस इज नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स एज हाँ, वेल. जिसमें कोई कैप नहीं है, जिसमें वो और बहुत टारगेटेड फर्टिलाइजर है, मतलब यूरिया तो फेंका जा रहा है, मतलब लोग लेके जस्ट दे आर डूइंग इट, बट देयर आर आल्सो टारगेटेड फर्टिलाइजर, मतलब अगर से गुआवा ग्रो करना है तो गुआवा के लिए एक फर्टिलाइजर उनके Yes. न्यूट्रिएंट के हिसाब से, सो दैट इज वेयर देयर इज नो कैपिंग एंड दिस इज देयर माने देयर प्रॉफिटेबल सेगमेंट, राइट? So ये number, what I'm curious about is, I don't know whether you have done this, but ये number, have you calculated for other urea players और जितने सारे urea producers हैं? नहीं, I मैं think ये उनके number लिए उनके लिए बहुत ज्यादा होगा, मेरा जो आइडिया है या अंडरस्टैंडिंग है. वो राइट, उनके लिए ज्यादा होगा सर, बिकॉज एक्चुअली इनका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और वो बाकी भी है जिसपे उनको नहीं मिलता है सब्सिडी, सो उनका ज्यादा होगा. करेक्ट, वो लोग उसमें है ही नहीं, तो एटलीस्ट कोरोमंडल का जो मेरे को सबसे अमेजिंग लगा कि कोरोमंडल का यूरिया सब्सिडी तो है, यूरिया तो एक तो बिजनेस है, वो तो कुछ कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, पर अगर गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी है और इसमें तुम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, कंपटीशन भी नहीं है, इट्स वेरी, मतलब ये लो मार्जिन है, बट कैश काउ है, थोड़ा सा पैसा आता रहता है, ये एक चीज है. बट इसके चक्कर में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेट है, इसके थ्रू दे आर आल्सो एबल टू सेल दीज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज आल्सो, sorry, nutrient based these things, and as our per capita income is increasing, our consumptions are changing, मेरे को लगता है fruit and vegetable का जो fertilizer है, that would be more targeted fertilizer, वहां पे ये लोग they are going to make a lot of money because they already have the distribution in place. मेरा perception है ये. Okay, cool. ये वाला चीज मेरे को एक बार when you do a follow up ना, this number, this percentage subsidy of total nutrient and other allied business, कुछ यूरिया वाले कंपनीज के साथ कंपेयर करके दिखाओगे? श्योर सर. ओके, ग्रेट. या प्लीज कंटिन्यू. निर्वाण सर, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं यार, I understood what Gaurav is saying. You can continue. ओके सर. तो यहाँ पे उनकी सब्सिडीज लाइक क्वाइट सी, इसमें ऐसा होता है कि जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनी के कॉस्ट पे हर्ट ना हो, बिकॉज ऑफ दैट द सब्सिडी आल्सो चेंजेस ओवर द इयर्स, एंड दैट वो प्रीवियस स्लाइड पे मैं वही बात करती थी कि उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी थी इन FY22 एंड आल्सो इंक्रीज इन FY2023, एंड इट इज गोइंग टू गो डाउन इन द फ्यूचर. मैं अभी इसकी इसलिए बात कर रही हूँ. एक क्वेश्चन है, सब्सिडी ये कब डिसाइड होता है? ये सिर्फ बजट में ही डिसाइड होता है या साल के बीच में भी द गवर्नमेंट चेंजेस इट? चेंज होता है सर, बजट में डिसाइड होता है तो चेंज भी होता है. अच्छा, 15 दिन बाद चेंज होता है. हाँ, इतना सी क्रूड के ऊपर, गैस के ऊपर दाम चेंज होता रहता है ना. ओके. तो गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी, मतलब यहाँ पे बहुत सेंसिटिव है. हाँ, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट लार्ज पॉपुलेशन, अगर वर्किंग कैपिटल में फंस गया या फिर प्लांट बंद हो जाता है, सो गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव ऑन दिस पार्ट. राइट. सर हियर जैसे कि 2022-2023 का बजटेड वाज 4,65,000 पर रिवाइज्ड होके 11,84,000 हो गया था. राइट, वो मैं समझ गया. अच्छा, तुम्हारे पास, तुम ये सब डेटा प्रेजेंट कर रही हो क्या सोनाक्षी, कि यूरिया जैसे सबसे ज्यादा सब्सिडी जिन प्रोडक्ट्स में है उसमें किस तरह का ग्रोथ हो रहा है वर्सेस लो सब्सिडी फर्टिलाइजर्स में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है फॉर कोरोमंडल? डू यू हैव दोस फिगर्स? फिगर्स है पर मेरे मॉडल में होगा, मैं उधर एक्सप्लेन कर दूं. ओके, ठीक है. ओके. और यहाँ पे एक्चुअली मैं इसकी इसलिए बात कर रही थी क्योंकि इट विल हर्ट द कंपनीज मार्जिन इन द फ्यूचर. प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंपनी की इन्वेंट्री इज लाइक 4,000 करोड़ अप्रॉक्स, तो अभी उनका जो इन्वेंट्री है वो हायर कॉस्ट पे है, और अगर अभी फ्यूचर में इनका ये रिवाइज हो जाएगा बजट, तो इट विल हर्ट द मार्जिन इन द फ्यूचर. सो दैट व्हाट आई वाज वांटेड टू फोकस. इन्वेंट्री लॉसेस होंगे, यू आर सेइंग? यस. ओके. And growth in subsidy was more than the growth in the revenue, so it is highly like कि आगे जाके उनको revenue कम होगा.
Here's the capex plan. यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया था कॉन में कि वो 2000 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं. 1000 करोड़ दे वांट टू फोकस इन क्रॉप प्रोटेक्शन एंड 700 to 800 इन फर्टिलाइजर्स. जो 700 800 है, which includes a CWIP of 400 crores, which is the expansion of sulfuric acid plant in Vizag, likely to commercialize in second quarter of FY 2024, but अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है, so I expected it to commercialize in third quarter. मैंने वो मॉडल में वैसे अज्यूम किया है. और ये 400 कैपेक्स डी बॉटलनेकिंग भी हेल्प करेगा फर्टिलाइजर प्लांट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3.6 मिलियन टन कैपेसिटी और 3.3 यूटिलाइज्ड है. सो ऑफ कोर्स दे नीड मोर कैपेसिटी टू डी बॉटलनेक द रेवेन्यू. कैपेसिटी एक्सपेंशन भी उनका प्लान है फॉर द एसएसपी ग्रेनुलेशन प्लांट. Granulation is nothing, which is like powder form or the liquid form of the fertilizers, because it helps to more to the plant and it is more effective. Whereas the crop protection is the actually main center right now. Crop protection में जो 1000 करोड़ का कैपेक्स है, वो उन्होंने कहा था कि वो 3 न्यू MPP मल्टीपर्पज प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे. पहला तो उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है इन द 50 acre लैंड पार्सल इन दहेज. They have already purchased the land for the capex they are going to made in the multi-purpose plant. और उनका जो 3 new MPP plant है, that is multi-purpose plant. What is multi-purpose? कंपनी मेंशन कर रही थी कि उनको अब स्पेसिफिकली टेक्निकल्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर फोकस नहीं करना है. दे वांट टू गो विद द टेक्निकल्स जो दूसरे मार्केट और दूसरे इंडस्ट्री में भी यूज हो सके. सो लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन कि फंगिसाइड जो अभी एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, वो फंगिसाइड पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है फॉर द एंटी फंगाइल पेंट्स. तो उनको ऐसे केमिकल्स पे फोकस करना है जो दूसरे मार्केट को भी सर्व करे, सो दैट दे हैव द लार्जर मार्केट शेयर इन फॉर द पर्टिकुलर टेक्निकल दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस. और कंपनी ने ये भी बोला कि एक मल्टीपर्पज प्लांट दे और first we will talk about 3 new MPPs. It is divided into 3 parts. First MPP plant especially focus करता है fungicides पे, जो उसका प्लांट होगा अंकलेश्वर में. वो ऑलरेडी फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल में है, बट कंपनी ने मेंशन नहीं किया कि कब ये कमर्शियलाइज होगा और कब रिवेन्यू जनरेट करेगा. बट दे हैव मेंशन कि 18 to 24 मंथ में ये तीनों प्लांट फंक्शनल हो जाएंगे. And second MPP plant setup होगा दहेज में, which is actually the expansion of the existing facility the company already have. ये भी focus more है on the fungicide front. And third one, which is allocated to the herbicide, setup होगा दहेज plant, दहेज में ही, और उसके लिए जो land है वो already purchase होगा, that is the 50 acre one. कंपनी ने ये भी मेंशन किया कि वो नैनोडेप में भी इन्वेस्ट करेगी. नैनोडेप which is actually नैनो टेक्नोलॉजी डायमोनियम फॉस्फेट. तो जो डैप है वो मोस्टली इंपोर्टेड, लाइक मोर देन 60% इंपोर्ट होता है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट इंडिया में. तो इसके लिए कंपनी ने बोला वो नैनो डैप पे फोकस कर रही है, विच इज नैनो टेक्नोलॉजी डैप, विच इज बेटर देन द नॉर्मल डैप. बेटर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड इट विल वर्क एज अ what we can say, मतलब मिनिमल यूटिलाइजेशन से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन आ सकता है. सो इट इज बेटर देन द नॉर्मल डैप. तो कंपनी अभी इसके पायलट फेज में थी. अभी कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं किया है. उन्होंने यही बोला है कि उन्होंने अभी जून या मई में स्टार्ट किया था पायलट टेस्टिंग. फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया है एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स कि कैसा एग्रीकल्चर आउटपुट आता है, कैसे फार्मर का रिस्पांस आता है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे वांट टू लॉन्च. उन्होंने इंटेंट किया है कि वो इसका कमर्शियलाइज करेंगे इन द सेकंड हाफ ऑफ द FY 2024. मॉडलिंग में यही प्रॉब्लम है, बिकॉज द कंपनी हैज नॉट मेंशन एनी नंबर्स एक्सेप्ट कि वो 40 मिलियन बॉटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनके पास अभी, बट रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 साल में मतलब फुल कैपेसिटी में आ जाएगा दिस 3 प्लांट्स, एंड इट विल एड टू 2 to 3,000 crore एडिशनल रेवेन्यू फॉर द कंपनी. बट बेसिकली ये सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 में आ जाएगा, बट 3 year टाइम फेज में फुल्ली ऑपरेशनल होगा. The company has also mentioned कि अभी इनिशियली उन लोगों को इंक्वायरीज आ रही है फ्रॉम द जापानीज एंड यूरोपियन इनोवेटर्स फॉर द CDM, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. सो एक्चुअली दिस इज बेसिकली इन
in context of the technical plans. और उन्होंने ऐसा बोला था कि जो companies को basically specific technicals चाहिए for their particular products, so the company will provide them on the contractual basis. So they are thinking in that term as well. So likely to contribute meaningfully to overall revenue in next 18 months. 18 months because 18 to 24 months में ये तीनों plan भी set up हो जाएंगे. ये मैंने अभी सिर्फ इसका यूटिलाइजेशन लिखा. वी कैन सी दैट कि फर्टिलाइजर एसएसपी मोस्टली यूटिलाइज्ड है. सीपीसी टेक्निकल्स में अभी 67% यूटिलाइजेशन है. वेयर एज बायो एज अ हमने अभी जो अभी देखा था वो अभी मार्केट में इतना फेज आउट नहीं हुआ है. एंड द कंपनी इज फोकसिंग ऑन इट एज इट इज एट अ नेशंट phase right now and it will grow further. So can I go ahead? हाँ सोनाक्षी, ये जो सीडीएमओ की बात चल रही है, हैव दे सेड व्हिच एरिया और मतलब स्पेसिफिक टू व्हिच काइंड ऑफ केमिस्ट्रीज या व्हिच एरिया, ऐसे कुछ बोला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला. उन्होंने सिर्फ टेक्निकल्स बोले कि वो टेक्निकल प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनकी इंक्वायरीज आई है. बिकॉज ऑफ एनडीए दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग. ओके. एंड अभी प्रेजेंटली कोई सीडीएमओ नहीं होता है इनका? नहीं, अभी कुछ नहीं है. ओके. Where we will see about the promoters of the company. Promoters had went down over the period of time, especially from FY22 to 23 June. FIIs has increased, whereas the DIIs has also increased, and the public is quite constant over the period of time. First, I just want to talk about the Eid Perry is the parental company with the 56.27% share, and Eid Perry, as I already told, is in providing the products in the division of sugar, nutraceuticals, and sugar refinery. Here are the details of the promoter of the company. Now here, Sonakshi, one question. Yes. Since EID Parry is the promoter and they are into sugar division and all that, do they also buy fertilizers from Coromandel? I mean, they didn't mention, but of course they would. And उनका inter-segment है, revenue का. So अच्छा. I think that is the part कि वो buy नहीं, और मतलब EID Parry ये और एक कंपनी है, राइट? पैरी एग्रो या समथिंग. yes, हाँ. पर वो टीम है, but उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है. अच्छा. सॉरी, क्या बोला आपने? वो क्या पैरी एग्रो के बारे में क्या बोला? पैरी एग्रो इज लाइक टी बेस्ड कंपनी. अच्छा, टी बेस्ड एग्रीकल्चर है. हाँ, टी को भी फर्टिलाइजर चाहिए होगा ना? हाँ, वो भी एग्रीकल्चर है. तो मतलब कितना इंटरनल सेल है, इसको थोड़ा अलग से आप नोट डाउन कर लो कि इसको कॉल आउट करना है कि मतलब हाउ मच सेल इज टू मुरुगप्पा ग्रुप कंपनीज. ओके. बिकॉज़ दैट इज कैप्टिव सेल, वो रहेगा. ठीक है. और ये EID है मेरे ख्याल से, मतलब जो नाम है ना उसको आई थिंक EID पैरी. हाँ. ओके. गो अहेड सर. यस सर. Actually, ये company Ambari Investment Limited is the major shareholder of the EID Parry, और EID Parry holds the 38.34% share in the Coromandel International. So Ambari Investment become the indirect major shareholder of the company. Ambari Investment Limited interest in the company is 21.57%, which is 56.27% multiplied with the 38.34%. So of the total net worth. So they are the members of, directors of the Ambari Investment Limited, which is basically the chairmen, Valan Subbiya and Murugappa. So they are the chairmen and the executive directors of the company. यार EID पैरी तो 58% दिखा रहा है इस पे स्क्रीनर पे. तुम बोल रहे हो 38% है, 56% दिखा रहा है. 56.27% है. 56.27%. ओके. अंबाड़ी होल्ड्स, ओके, इनडायरेक्टली 21. और ये क्या है? ये पहले वाले बुलेट पॉइंट में EID पैरी एंड होल्ड 38.34% शेयर ऑफ द कंपनी. अच्छा, अंबाड़ी होल्ड्स 38.34% ऑफ EID पैरी. नहीं, 56.27% अंबाड़ी EID पैरी में होल्ड करता है और EID पैरी 38.34 कोरोमंडल में होल्ड करता है. नहीं, उल्टा है वही, उसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था. EID पैरी कोरोमंडल में 56% होल्ड करता है. वो तो स्क्रीनर में दिख रहा है मुझे. ओके. मैंने नंबर गड़बड़ की. हाँ, ठीक है. ओके, गॉट इट. ओके सर. Here are the DII holdings.
Kotak Mahindra trustee और मतलब ये सब उन लोगों ने invest किया and they have increased their holding in the company in June 2023 and the public holding has also increased over the time. I mean comparatively lower but increased over the time. So can I go further? Yeah, Sonakshi, if we have questions, we'll stop you. You can proceed otherwise. Okay, sir. We will see the financial and competitive analysis. First, we will go through the segment revenue. So we can see the nutrients and other allied businesses has grown over the period a lot. Of course, FY22-2023 it is because of increase in raw material and because of that the revenue has increased. Crop protection has quite been constant. One question, Sonakshi, do we have volume growth over like value growth will have a lot of distortion because of subsidy, etc. Volume will give you a very good picture. Do we have that? नहीं सर, वो नहीं है. वो कहीं डिक्लेयर नहीं करते हैं ये लोग या मार्केट शेयर. देख लूंगी सर. हाँ, एक बार नोट कर लो. अगर तुम्हें मार्केट शेयर या वॉल्यूम कहीं भी ब्रोकरेज रिपोर्ट या इनके ही इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कहीं से मिलते हैं, बिकॉज दैट विल बी सिग्नल ऑफ हाउ वेल दे आर डूइंग. यस सर. मतलब दो चीज, एक तो कि कितना वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ रहा है और दूसरा कितना ये नॉन सब्सिडाइज या लेस सब्सिडाइज का जो मिक्स है प्रोडक्ट मिक्स में वो कितना बढ़ रहा है. ये दोनों चीज अगर हम देखेंगे तो वी कैन देन गेज देयर फर्टिलाइजर परफॉर्मेंस. राइट गौरव? Yes, absolutely. Yeah. Okay. Crop protection has been growing with the minimal margin, minimal growth, but ये यहाँ पे इनको सब्सिडी मिलती है और इधर सब्सिडी नहीं मिलती. एंड वन ऑफ द रीजन कि उनका ग्रोथ इधर नहीं है इज कि अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया एंड फार्मर्स हैव कट डाउन देयर एक्सपेंसेस ऑन द क्रॉप प्रोटेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी इज टेकिंग द हिट राइट नाउ. Whereas the product segment contribution to revenue, the major contribution is of the phosphatic fertilizers, and it has grown over the time, and the crop protection has also grown over the period of time. So whereas the others are very minimal, SSP, MOP, urea. ये फॉस्फेटिक पूरा जो है इस पे पूरा ही वो भारी भरकम 90% डिस्काउंट होता है क्या, या यूरिया वाले पार्ट में सिर्फ होता है? नहीं सर, एक्चुअली सब में मिलता है. सिर्फ कॉम्प्लेक्स और स्पेशल न्यूट्रिएंट बेस्ड जो फर्टिलाइजर होते हैं उन पे नहीं मिलता. मतलब एसएसपी एमओपी इनमें कम होता है क्या थोड़ा? नहीं, एसएसपी में मिलता है सर, एमओपी भी मिलता है, यूरिया में और डैप में ज्यादा मिलता है, बस इतना है. ओके, हाँ ठीक है सर. वो एक्चुअली चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड, बट यूरिया और डैप आर कंसिडर्ड टू बी द मेनली इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर राइट नाउ. राइट. सेगमेंट ROCE has increased. It is because कि अभी उनका ओवरऑल रिवेन्यू बढ़ गया है कम बिकॉज ऑफ द प्राइजेस, और रिजर्व्स उनके बढ़ गए हैं. अदरवाइज उनका एक्चुअली ROCE is not that much high. Competitors info. So before we go further, we will study about the competitor. That Gujarat State Fertilizer and Chemical Limited have the market cap of 6694 crores. FC actually operates in two segments: fertilizer and industrial products. Fertilizer contributes to the 60 to 70% of turnover of income, whereas industrial product contributes to 30 to 40%. Product fertilizer is the 77%, and industrial products are for the 23% for the company. Industrial products include plastic, synthetic rubber, man-made fibers. Fertilizer, which is actually they are focusing on DAP, AS, APS, and urea, which is basically subsidized products in the market. Whereas the company has 4 manufacturing units in Vadodara, Surat, and Jamnagar. This is the government-hold companies. National Fertilizer Limited, which is on the production and marketing of neem-coated urea, biofertilizers, and other allied industrial products. Its main revenue split is from the 65.55 from the urea. Other product is 34.45. It has started its certified seeds in production, which is known as the Kisan Beej. Deepak Fertilizer and Petrochemical Corp Limited, market cap is 7,020 crores. Incorporated in 1979, it is basically in the business of fertilizer, chemicals, and reality windmills. Company is also investing in the cloud computing, process automation, mobile apps, unified communication, collaboration tools. It has the 48 products basket.
The company's major investment is in chemical and fertilizers, where is just 1% in reality and windmill. Chambal Fertilizer and Chemical Limited, it is like around 11,500 crores. Product portfolio includes a fertilizer and agri inputs such as urea, diammonium phosphate, MOP, ammonium phosphate sulfate, different grades of NPK fertilizers. It only manufactures urea and it has the production plant for it. Otherwise जो बाकी के fertilizer है, it market and trades the other fertilizers. Agri input through its the distribution network. Brand name है उनका उत्तम वीर. यूरिया में से उनको 58% रेवेन्यू आता है और दूसरे fertilizer input से 42%. Presently, company का market share है 20% in urea, 13% in DAP, 2% in MOP and 2% in NPK. Revenue, यहाँ पे हम लोग ट्रेजेक्ट्री देखें तो सारे कंपनीज के रेवेन्यू हैज बीन ग्रोइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट द दीपक फर्टिलाइजर, बिकॉज दीपक फर्टिलाइजर में द इफेक्ट ऑफ द raw material increase prices has not been seen much because इनका 40% मार्केट उनका इंडस्ट्रियल में भी है. इसके लिए बाकी सारी कंपनीज में ग्रोथ हुआ था बिकॉज ऑफ द हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट. EBITDA मार्जिन, एक्चुअली मैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में EBITDA बढ़ा है, बट मार्जिन टर्म्स में EBITDA हैज नॉट ग्रोन मच. इट इज ऑन एन एवरेज 13% एंड इट हैज रिड्यूस्ड इन 2023 because as they are also into the complex fertilizer and special nutrient manufacturing, which has seen the cut in margin, as well as crop protection में भी उनका मार्जिन कम हुआ है एंड सेल कम हुआ था, तो उनका EBITDA मार्जिन को काफी अफेक्ट हुआ है. एंड बाकी कंपनीज का भी EBITDA ग्रोथ हुआ है एंड विच इज कंपैरेटिवली बेटर. In the gross margin, we can see that all the companies has been seeing the downflow because of the increase in raw material costs, except this GSFC. Basically इनका इतना ग्रॉस मार्जिन हिट नहीं हुआ था बिकॉज दे आर मोस्टली इन द यूरिया एंड दैट सब्सिडाइज प्रोडक्ट एंड उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी उनका बिजनेस है. सो बिकॉज ऑफ दैट उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल चुकी है. बाकी बिजनेसेस आर इनटू द अदर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल. इसके वजह से उनका ग्रॉस मार्जिन वाज हिट बैडली कंपैरेटिव टू द GSFC. Whereas operating margin has been seen to be the same. For Deepak Fertilizer का operating margin better है as because of the 40% in the industrial market. And secondly, यहाँ पे एक और चीज है कि Coromandel का manufacturing cost is comparatively high compared to the other companies. इनका 8 to 10% है, जबकि बाकियों का income manufacturing cost is comparatively high, that is 10 to 18% compared to the other companies, which is 15%. I'm doing something wrong. 60 to 70. So I'll correct my numbers. I think I've written wrong. But income mainly manufacturing cost is comparatively high compared to the other companies. उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक्चुअली उन्होंने ये भी मेंशन किया था उनका पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वाज कंपैरेटिवली हाई, सो एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज कंपैरेटिवली हाई देन द अदर कंपनीज. फिर net profit margin, well we can see that the net profit margin has seen the cut down in all the company except GSFC and Deepak Fertilizer. GSFC का depreciation बहुत कम है अभी, पर अभी उन्होंने capex किया है और वो अभी increase होगा, so it will see net profit margin hit होगा in the future. अभी उनका asset base ही कम है and because of that उनका depreciation कम है. और Deepak Fertilizer का due to lower material cost उनका net profit margin comparatively better. नेट फिक्स असेट टर्नओवर हम देखें तो कोरोमंडल का सबसे ज्यादा है. इट इज बिकॉज कि कंपनी नॉन सब्सिडी प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व है एंड उनका प्राइस हायर होता है कंपेरेटिव टू द सब्सिडी वन, एंड ड्यू टू दैट उनका रिवेन्यू ओवरऑल वैल्यू उनका ज्यादा होता है. बिकॉज इससे हम जब डिवाइड करते हैं जो असेट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका नेट फिक्स असेट टर्नओवर ज्यादा है. एंड company also do the trading of the product when demand increases. Like अभी उन्होंने कॉल में mention किया था कि वो like 40 to 50% प्रोड्यूस कर रहे थे और बाकी का वो इम्पोर्ट करके बेच रहे थे बिकॉज डिमांड आ रहा था एंड दे डिडंट वांटेड टू लूज द मार्केट. बट उन्होंने क्या किया था कि डेप का प्रोडक्शन की जगह वो दूसरे प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे जहाँ पे उनको मार्जिन बेटर मिल सके. तो
the company do the flexible production as well. तो उसके वजह से उनका ट्रेडिंग भी करते हैं, and that's the reason उनका revenue comparatively higher है, and thus उनका investment in assets is comparatively lower. एंड वो ऑल्सो उनके सर्विस सेक्टर में भी प्रोवाइड करते हैं, एंड उनका रिटेल्स भी है, एंड ड्यू टू दैट दे हैव द बेटर एनएफटी देन द अदर कंपनीज. वर्किंग कैपिटल डे सारे कंपनीज के हिट हुए थे, और अभी वो लोग वापस से रिकवर हो रहे हैं, बिकॉज उनको सब्सिडी हमेशा लेट आती है. लाइक अभी मई में उनको आता है, जो यूरिया प्रोडक्शन का होते हैं उन लोगों को मई में मिल जाता है, मई और अप्रैल में मिल जाता है, और बाकी के जो दूसरे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसके लिए उनको सब्सिडी मिलती है वो उनको जून और जुलाई में मिलता है. तो उनको जब लेट पेमेंट आता है फॉर द सब्सिडी विच इज comparatively 72% for the company I'm talking about, 72% subsidy based product वो अभी सेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको अफेक्ट होता है उनके वर्किंग कैपिटल डेज पे. CFO EBITDA CFO भी रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ receivables, and उसके बाद अभी उनका EBITDA इंक्रीज हुआ in the overall value, so it is getting the traction again from 2022 to 2023. And it is affected in all over the companies except the Deepak Fertilizer, which is the 40% industrial product, so they have the better CFO and the consistent CFO compared to the other companies जो subsidy based है. ROCE कंपनी का बहुत consistently grow हुआ है, like 23, 26, 32, 35, 38, but this is not quite maintainable in the future because अभी वो increase हुआ है due to the high revenue, और उन पर ऑफ कोर्स मार्जिन हिट हुआ है, तो अब उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है, बट इन द फ्यूचर मैंने जैसा भी बोला उनका इन्वेंट्री इज हाई, तो उनका मार्जिन भी हिट होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट ROCE कैन फॉल डाउन इन द फ्यूचर. ROE is quite consistent, and which we can see over the period, which is good about the company. On an average, it is 25%, we can say. Comparative to the other company, it is quite consistent. Debt to equity, we can see the company has been focusing on reducing that debt over the period. Company ने अभी उनके कॉल में बोला था कि जो आगे का capex होने वाला है, they are going to do it from the internal accruals. They are not interested in taking any debt in the future, so they are very sure they are not going to take any debt. So I think this is manageable in the future because the company do not want to have the leverage portfolio for themselves. Here it is the forensic analysis. Promoter skin in the game is 21.57%. As we have seen, it is indirectly held by the Ambari investment. And auditor and auditor remuneration is 0.85 compared to 0.33 of Deepak. Of the other companies, it was 0.24, 0.30. So it was like that. Deepak is like 7,000 crore market cap. So मैंने इसके लिए Deepak से compare किया. But Coromandel is 30,000 cap. तो इसके लिए 0.85. I don't think it is a concern. And other expenses में देखा जाए तो कंपनी का 10% और बाकी peers का 8% था. But उनके other expenses have increased also because of registration and everything. So I think it is okay. Just wanted to give a gist here कि कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है फर्टिलाइजर में, और उनका ग्रोथ इंजन उनके लिए स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन है. स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने आपको बोला था नैनोडेप के लिए, तो नैनोडेप इज आल्सो कम अंडर दैट कि वो लोग उनको स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से नैनोडेप प्रोवाइड करेंगे विच इज द हाईली इफेक्टिव कंपेरेटिव टू द नॉर्मल डेप. और उनके बाद लैंड के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड किया जाएगा उसके हिसाब से भी स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज लाइक द ग्रोथ इंजन दे आर फोकसिंग ऑन. एंड क्रॉप प्रोटेक्शन जैसे टेक्निकल्स उन सब पे वो फोकस कर रहे हैं. द अदर नेशन स्टेज आर ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल्स. अभी मैंने बोला था दैट इज 5.1 कंपेरेटिव टू 22.5 जो उनकी कैपेसिटी थी बायोटेक में, और उनका सिर्फ 5.1 अभी प्रोडक्शन हो रहा है, तो दे आर अभी इनिशियल स्टेज पे है. एंड उनका फोकस है रिटेल के कि वो सीड्स भी प्रोवाइड करे कंपनी को, बट दे हैव नॉट मेंशन कि उन्होंने अभी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इसमें. और फार्म इम्प्लीमेंटेशन, मशीनरी एक्सेट्रा, एक्वावेट फीड एंड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स दे वांट टू प्रोवाइड थ्रू द रिटेल्स. Well, these are the growth drivers of the company. अभी जो कंपनी है वो basically fertilizer crop protection base है, but company is venturing into different criteria as well.
अभी मैंने डैनोडेप के लिए बात की थी. इट इज द सेकंड मोस्ट यूटिलाइज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया. द डेप इज द सेकंड मोस्ट यूटिलाइज्ड फर्टिलाइजर एंड रिलाइज करता है इंडिया ऑन द इंपोर्ट्स. मोर देन 50% ऑफ डेप रिक्वायरमेंट हम लोग इंपोर्ट करके सेटिस्फाई करते हैं. तो जो कोरोमंडल है उन्होंने डेवलप किया है नैनोटेक बेस्ड फर्टिलाइजर दैट इज नोन एज नैनोडेप फ्रॉम इट्स R&D सेंटर IIT बॉम्बे. It is able to deliver the nutrition efficiently to plants comparatively to the conventional products due to the smaller size and higher surface area. Nanoparticle limit करता है nutrient losses owing to the leaching, fixation, volatilization and hence offer the better nutrients. ये FCO approved है and setting up a greenfield facility in the Andhra Pradesh and plans to launch the product in 2023. जैसे उन्होंने बोला था कि वो second half of 2023 में वो launch करने का plan कर रहे हैं and but अभी उन्होंने बोला था वो pilot stage पे है and then they are actually saying कि how the product is affecting the agriculture and कैसे farmers उसे accept कर पा रहे हैं market में कि नहीं कर पा रहे हैं. So they are unsure about it yet, but उनका भी plan है to launch it. CDMO, which is the contractual based manufacturing. Coromandel. Sonakshi, one question on NanoDAP. इन लोगों ने greenfield facility पे capex शुरू कर दिया है या बस planned है? Sir, capex किसमें? NanoDAP का जो greenfield facility है आंध्र प्रदेश में, इस पे उन्होंने actually already capex कर लिया है सर. कितने का करोड़ का capex था? वो नहीं पता, वो मैं देख के बताऊंगी. अच्छा ठीक है, तो ये भी बताना. और कैपेक्स कर दिया है उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं वी आर अनश्योर अबाउट मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी. नहीं, एक्चुअली उन्होंने बोला था कि जो नैनोडेप है वो FCO अप्रूव्ड है, इट इज सेफ. बट अभी वो लोग देख रहे, क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन मार्केट में फार्मर्स उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे और जिस प्राइस पे अवेलेबल होगा वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज अनसर्टन. ये सब्सिडी के अंदर आएगा? ये उन्होंने मेंशन नहीं किया. आई डोंट थिंक वो सब्सिडी के अंदर आएगा बिकॉज नैनोडेप इज काइंड ऑफ अ स्पेशल न्यूट्रिएंट बेस, राइट? बिकॉज डेप इज अवेलेबल, तो नैनोडेप इज लाइक हाई टेक, तो मुझे नहीं लग रहा आएगा. तो जैसे डैप के लिए आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंपोर्टेड, राइट? मतलब फास्फोरिक एसिड वगैरह बहुत सारा आई थिंक ये लोग इंपोर्ट करते हैं, राइट? मतलब इनकी जो बाहर की फैसिलिटीज है वहां बनती है शायद. हाँ, डेप के लिए जो फॉस्फोरिक एसिड जो इंपोर्ट करते हैं ना, अब उन्होंने क्या किया है कि वो रॉक इंपोर्ट करते हैं, फॉस्फोरिक रॉक, और उससे वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड प्लांट, तो इसलिए उनका कैपेक्स उसमें भी है. ओके, तो नैनोडैप वर्सेस डैप में कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? जैसे अगर नैनोडैप बनाओगे तो इज इट मोर लाइक इंडिया में ही बन जाएगा या सेम काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज है जो डैप में है बाहर, मतलब फॉर इंपोर्ट्स? सर इंपोर्ट तो रहेगा, डिपेंडेंसी है. ओके, हाँ. ठीक है. बट इंडिया में ना वर्ल्ड फर्स्ट नैनोडैप बनाया गया था. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिकल ऑन दिस वन. I'll share the link. किसने बनाया था ये, अगर शेयर करो तो इट विल बी इंटरेस्टिंग. तो ये कंपनी है ना IFFCO is one bottle of NanoDAP अच्छा fertilizer, the world's first, will replace a 50 kg bag of traditional DAP and will be available at a commercial rate of 600 per 500 milliliter. So basically it's more water soluble. मतलब छोटा छोटा particles है ना, तो अच्छे से solve हो जाता है compared to large bulk. और मेरे को लगता है इसका सब्सिडी रहेगा. I think March 23 में एक तो न्यूज़ है, but let me find it. राइट, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. CDMO में it is diversified into specialty industrial chemical segment. The company's strategy is to establish a sizable presence in the crop protection chemical business, and they want to leverage its deep technical capabilities. They want to have a capex of 1,000 crore in CDMO. I mean like 1,000 crore का पार्ट होगा CDMO, because 1,000 crore पूरा क्रॉप प्रोटेक्शन में जा रहा है और उसका ही कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट इसमें भी इन्वेस्ट किया जाएगा. I mean like 3 MPP प्लांट जो सेटअप हो रहा है. फिर इकोजन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट है पुणे बेस्ड स्टार्टअप में, एग्रीटेक इन्वेस्टमेंट. emphasis on creating positive and long term effect on the ground, which is actually piloted EcoFrost cold storage installation. मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है वो स्टेल ना हो जाए, इसके लिए वो जो कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाली कंपनी है, उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है. सो इट इज टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजनल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी. की प्रोडक्ट 2 है, एक तो सोलर पावर्ड है और एक स्मार्ट सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज रूम है, एंड इट इज वन इज पंप कंट्रोलर.
अभी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही, अभी इन्वेस्टमेंट ही किया है जून में, सो वील सी कि हाउ इट टर्न्स आउट। और स्ट्रिंग बायो इज अ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ऑफर करता है ग्रीन हाउस गैस डिराइव प्रोडक्ट फॉर एग्रीकल्चर, एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड पर्सनल केयर। इनको लीडर है गैस फर्मेंटेशन में, एंड इट इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव अ पेटेंट ग्रांट फॉर माइक्रोबायल बायोस्टिमुलेंट्स। इट्स लाइक वर्क एज अ बायो, दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द बायोटेक, जो हमने अभी आगे बात की, तो इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट है स्ट्रिंग बायो में। दे हैव द इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इन अगस्त 2022, differentiated and tested product portfolio catered to varied sectors and has the potential to enable the transition to a low carbon economy. 50 प्रोडक्ट उनके पेटेंटेड है एंड एप्लीकेशन है बायोलॉजी, फर्मेंटेशन, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में। अभी इसके बारे में भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वी विल सी हाउ इट टर्न्स आउट इन द फ्यूचर। Daksha Unmanned System Private Limited. It is a drone technology startup. It has the varied application ranging from agriculture to surveillance, as well as for the defense. Game changer in the accelerating the adoption of water soluble fertilizer. जब उन्होंने ये दक्षा को acquire करने की बात की थी, the main focus was to enter into the market of defense as well as surveillance as well as agriculture, जिससे वो sprinkle कर सके fertilizer over the farm through the drones. So adoption of water valuable soluble fertilizer, liquid fertilizer, nano fertilizer and crop protection product in India. Key products उनके DH aggregator है, next generation agriculture sprayer drone scale of operation and manufacturing facility अम्बतपुर चेन्नई में है। हम इसके बारे में अभी आगे एक और बात करेंगे, बट इससे पहले ये दो और ग्रोथ ड्राइवर्स है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था बायोबैग, BAOBAB माइनिंग एंड केमिकल कॉर्पोरेशन। इट इज अ स्ट्रेटेजिक टाई अप विद द टिफर्ट एंड फॉक्सर for meeting the phosphoric acid requirement. Company has constantly focusing on making the strategic investments in order to have the tie-ups for the phosphoric acid, because it is the main ingredient for all the fertilizer for the company. So it's captive phosphoric acid production at Visakhapatnam plant and is sourcing the rock from the various countries. Visakhapatnam plant वो जो 400 का capex कर रही है ना कंपनी, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने 45% इक्विटी स्टेक लिया था इसमें, and rock phosphate mining company based in Senegal, Africa, at an outlay of 150 crores. It's 150 crore का इन्वेस्टमेंट है। हाई डिपेंडेंसी है रॉक फॉस्फेट में, ऐसे इन्वेस्टमेंट इन BMCC इंप्रूव करेगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड द सप्लाई सिक्योरिटी गोल्स फॉर मीटिंग द कंट्रीज फर्टिलाइजर नीड्स। Project has granted 20-year renewable exploitation permit in 2018. 3 years have passed, and at full capacity BMCC can meet up 1/3 of the Coromandel rock phosphate requirements. Well, the 2/3 उनके दो और strategic partners है और उसमें से भी उनका satisfy होता है, but there is a certain risk अभी भी जो उनको import करना पड़ता है। Whereas there is a backward integration of sulfuric acid plant, setting up a new 1650 metric ton per day design capacity sulfuric acid plant at its fertilizer complex in Visakhapatnam at a cost of 400 crore. मतलब उसकी capacity of production will be 1650 for a day, metric ton for a day. वो ensure करेगा sustainable production of phosphoric acid, one of the key raw material for the phosphatic fertilizer. Expected to be commissioned in 2023 and will company is expecting to double कर देगा sulfuric acid production capacity को। यार सोनाक्षी, ये जो एक एनालिसिस ट्राई करने की कि रॉ मटेरियल्स का जो मतलब मेन रॉ मटेरियल्स इनके लिए क्या है, ठीक है, वो थोड़ा पता करना। आई कैन आल्सो हेल्प यू विद सम इंपोर्ट डेटा इफ आई गेट इट, एंड उसमें से कितने सप्लाई चेन में इन्होंने कंट्रोल अपना जमा लिया है। कंट्रोल मतलब जैसे दे हैव एक्वायर्ड ऑल दीस कंपनीज ना इन अफ्रीका, दैट मींस दे हैव कंट्रोल ऑन द सप्लाई चेन। तो मतलब मेन कौन से इंग्रेडिएंट्स इनके आरएम्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एटसेट्रा, एंड टू व्हाट एक्सटेंट आर दे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि इधर एक रॉक फॉस्फेट फैसिलिटी एक्वायर कर लिया है या तो कहीं फैक्ट्री लगा दी है, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वी नीड टू डू सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंड बेंचमार्किंग अगेंस्ट देयर other fertilizer players to understand कि ये actually मतलब is this a much better company than its peers because it is securing its supply chain, right? मतलब import पे उतना dependence नहीं होगा इनका।
सर एक्चुअली मैं जितना मैंने सर्च किया था तो इनका मेन इंग्रेडिएंट इज फॉस्फेटिक, बिकॉज उनका मेन इन्वेस्टमेंट भी फॉस्फेटिक है और रेवेन्यू भी उनका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से है। तो उनका जो फॉस्फेटिक के लिए जो फॉस्फोरिक रॉक होता है वो होता है मेन रॉ मटेरियल। तो उनका इन्वेस्टमेंट अभी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में है वो इसी वजह से है, क्योंकि वो अभी वो और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल उनके लिए ये होगा फॉस्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, ये तो लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें। So that is one part of it. The second is जो phosphoric rock है उसका ही they are securing it by buying out mines, right? Yes, यहाँ पे exactly. तो मतलब और भी कुछ मतलब are there any other critical raw materials which मैं देखती हूँ सर उसके लिए। हाँ एक बार वो देखो, और एक चीज देखो कि are there any other Indian companies which are like this company कि phosphoric rock वगैरह ये सब का माइन खरीद रही है अफ्रीका में, just to get an idea कि is this company the Mercedes Benz of this category or not, या इसके जैसे और भी 2-3 लोग हैं। Because chemicals में ना supply chain backward integration is a huge competitive advantage. Right. Yeah. Yes sir. ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स मतलब उस दिन आया था फ्राइडे को ही, तो इसमें उन्होंने 51.02% स्टेक हासिल कर लिया इन द दक्षा। 32.68% उनका ऑलरेडी स्टेक था थ्रू द सब्सिडियरी कोरोमंडल टेक्नोलॉजी। 18.34% दक्षा में स्टेक था डेयर वेंचर लिमिटेड, वन ऑफ द कंपनी ऑफ मुरुगप्पा, जो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया टू द कोरोमंडल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। About this company, it is only the company which has the DGCA type certificates of 3 drone models. 3 drone models मतलब agriculture, surveillance and defense, तीनों में वो यूज हो सकता है for the medium and small categories. And अरुण अलगप्पन ने उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज किया है पॉलिसी फॉर एक्सपोर्टिंग द सिविलियन ड्रोन्स, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी की दक्षा का वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। Additionally, he emphasized the Coromandel international commitment to support Atmanirbhar Bharat in the drone manufacturing sector, aiming to enhance the domestic value creation and promote the development of frontier technologies. Here is जो आज आपने भेजा था सर, कंपनी को अभी प्रोजेक्ट मिला है। द कंपनी के पास पहले 200 मीडियम अल्टीट्यूड लॉजिस्टिक का ड्रोन का ऑलरेडी क्या कहते हैं ऑफर था, और उसके एक मिनट, हाँ 200 उनको एक्चुअली इंडियन आर्मी का भी ऑफर आया है, और जबकि रिसेंटली उनके पास 400 ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था एग्री इनपुट का फ्रॉम IFFCO से। सो ये 200 प्लस 400 इन दोनों को मिला के उनका इस साल का ऑफर होता है 165 करोड़। So the company is actually venturing into the defense as well, and strong order pipeline hai, which will further increase the potential revenue for the current year. The company has the collaboration with the Anna University, is the only player in the country to receive the certification of DGCA, and it serves in medium and small categories both. So this is all about it. The company had been shortlisted under the production link incentive scheme for drone manufacturing. So they are going to take the advantages of PLI scheme as well. Well, this is just an additional slide. I wanted to just mention कि कैसे cost बढ़ गया था, and because of that the raw material cost increase हुआ था natural gas prices and crude petrol prices के हिसाब से, और अभी वो prices गिर रहे हैं, because of that the subsidy will go down and thus the revenue margin as well. That's it. Anything, sir? Nothing from my side, Sonakshi. Thanks for explaining the story. Story तो समझ आ गया. Yeah, it also explains the entire sector. मतलब Yeah. अच्छा मेरे को समझ, मैं पॉलिसी की तरफ से I think one of the key thing is reduction of subsidy in agro inputs. ये तो एक गवर्नमेंट का पुश है ही, so ये nano DAP and all, but these would be very slow. What I find interesting is their acquisition of these drones and all, क्योंकि farm mechanization is a big theme. इंडिया में एकदम zero है. So if farm mechanization takes place, क्या होता है कि targeted you can sprinkle targeted say for example pesticide or insecticide. It is bad for the companies
which are selling these things, but good for I mean raw material input, sorry farm input. ये एक चीज हो जाता है. Second is right now I was trying to take a drone license sort of just to kind of have some hobby drone. तो मेरे को पता चला कि in India right now there's a huge demand for these larger size drone for agricultural stuff. So this drone is not a very niche technology, but I think slowly what would happen is जिनके पास ज़्यादा muscle power होगा, ज़्यादा order book रहेगा, because drone is also government controlled. So some way I feel Coromandel will have a comparative advantage over this because others are not doing it. तो ये मेरा feeling है. मतलब let's see 2-3 साल में क्या जाएगा. ड्रोन को लेके जो फ्लाइंग गाइडलाइंस वगैरह है, डू यू थिंक दे आर ऑलरेडी एट अ स्टेबल इनफ, एडवांस्ड इनफ, मैच्योर इनफ लेवल जहां पे फार्मर्स लार्ज स्केल में खरीद के डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं, फार्मर जनरली नहीं करेगा ड्रोन. ड्रोन वुड बी डन बाय सम थर्ड पार्टी जो कि फार्म्स में जाएगा. they will say for example कोई बड़ा सा खेत है, farmers will probably book 2 hours of drone time, वो ड्रोन में डालेगा and then जाके वो स्प्रे करेगा. These are for say farmlands which are like 2 hectare 3 hectare का होगा. वो जो कि पहले तुमको मैनुअली करने में तुमको 10 दिन लगता था, वो आज तुमको 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा. क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब चेक करना कि कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, ये सब चीजें. दैट्स नंबर 1. इंडिया में तो एक वो प्रॉब्लम है ना गौरव कि हमारे फार्म साइजेस छोटे हैं. हाँ, तो इसके लिए तो अच्छा है ना. It might become like a service. और एक चीज निर्वाण, if you have observed or not, अभी farmers face a lot of challenge with respect to these weeding season, क्योंकि लेबर नहीं मिलते, इनके लो कॉस्ट लेबर नहीं मिल रहे for weeding and all of these things. तो इसीलिए large scale pesticide फेंका जाता है, herbicide फेंका जाता है, कि और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास. वरना manual weeding was the way to go. But with respect to this, I think this will make a lot of difference. India में वैसे भी agro output is almost half. I mean 1960 में जितना था ना, उसका half हो गया. 1960 में I think कितना पड़ा था, 1 kg यूरिया will छोड़ो, मैं देख के बताता हूँ. ये एक अच्छा सा almost half हो गया basically. The amount of production that we have per hectare, that is almost half from 1960. अच्छा, okay. Right now. That was the main thing. Yeah. Right. तो काफी interesting है. मतलब they are kind of future proving themselves. But let's see how it works out. क्योंकि मेरे को लगता है ये agro drone becomes a commodity. हो सकता है. सर आपको लगता है कि इनको टैक्स सब्सिडी भी मिलेगा बिकॉज वो एग्रीकल्चर ड्रोन बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो उनको प्रोवाइड करेगी, राइट? मतलब टैक्स सब्सिडी क्या ही मिलेगा इनको. टेक का तो कोई सब्सिडी होता नहीं है जनरली वैसे करके. ड्रोन पर ये लोग क्या कर सकते हैं इसका, अभी देखो अभी की कंडीशन में तुम डेटा की तरफ से इसको सोचना शुरू कर दो कि कंपनी अगर से फॉर एग्जांपल टुडे आज वो ड्रोन लेके सिर्फ फोटो खींच रहा है हर एक फार्म का एंड दे आर एबल टू यूज इमेज प्रोसेसिंग, तो उससे ये समझ आ रहा है कि इनको कि प्लांट जब खराब होने लगता है, पेस्ट होने लगता है, तो कलर कुछ चेंज हो जाता है लीव्स का, ये पता चल रहा है. ये डेटाबेस उनका बनते रहता है. तो एक टाइम पे आ जाएगा कि वो डेटाबेस बिकम्स देयर लार्जेस्ट काइंड ऑफ मोट, और इनके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही, तो ये रीजनल प्लेयर्स नहीं बनेंगे और इट विल बी मच लार्जर. प्लस ड्रोन का और भी कई सारे एप्लीकेशन है. और इंडिया में और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया में ड्रोन का बहुत कम कंपनीज को ये सब स्कीम मिलेगा. ड्रोन कैन नॉट बी इंपोर्टेड इन इंडिया, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. तो चाइना से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका. तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. ड्रोन यू कांट इवन गेट अ डिसअसेंबल्ड ड्रोन या ब्रोकन डाउन ड्रोन जिसको तुम असेंबल कर सकते हो. इट्स इलीगल. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. यस सर, कैन आई गो विद द फाइनेंशियल मॉडल? I just try to put some number. Yes. हाँ, देखते हैं ना थोड़ा से. हाँ. Okay. आपने वो पूछा था ना, ग्रोथ. Yes. Yes. Phosphatic fertilizer, यूरिया, मॉप, SSP, ये सब में हमको मिलता है
सब्सिडी, अदर्स विल इंक्लूड द कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग, तो इसके लिए इसमें इनको सब्सिडी इतना नहीं मिलता. सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द इयर्स. Okay. This is the growth of the revenue. हाँ, revenue. And मतलब this is including subsidy. नॉट इंक्लूडिंग सब्सिडी. सब्सिडी अलग है यहाँ पे. Subsidy अलग है. Okay. हाँ. मतलब this is sort of like a volume growth kind of thing आप बोल सकते हो, क्योंकि प्राइस तो सेम ही रहेगा. Yes. Okay. तो 3-year CAGR 14%, फॉस्फेटिक का और यूरिया का 44%. Okay. SSP is growing well. And ठीक है. Okay. और क्रॉप प्रोटेक्शन का ग्रोथ हुआ 16.07%, 3 years CAGR. दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग. मैंने ये एक रिपोर्ट से लिया था, प्रभुदास लीलाधर. यहाँ पे उन्होंने एबिडा पर टन का मेजरमेंट लिखा था. सो वी कैन सी कि वो सीजनलिटी है इस कंपनी में. फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा होता है एंड देन इट गोज डाउन एंड देन गो अगेन. तो मैंने इसके लिए लिया था बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई टू मॉडल बेस्ड ऑन एबिडा पर टन, बट वो नहीं हो पा रहा था. बिकॉज द कंपनी ने बोला था कि अभी उनका एबिडा पर टन ज्यादा है बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, बट इन द फ्यूचर दे वुड बी एबल टू मेंटेन एट 5500. बट उसके आगे का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड हियर. एंड मैंने दूसरी तरीके से मॉडल किया है. दिस इज द मॉडल. वेल हियर हमने अभी उसमें देखा भी था कि क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. एक बार सोनाक्षी तुम अगर मॉडल के स्टेप्स, ब्रॉड स्टेप्स हमें पहले बता दो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि कौन-कौन से स्टेप्स है मॉडल में. दैट विल आई थिंक मेक इट इजियर. ओके सर. मैंने क्या किया, जो कंपनी का टोटल कैपेसिटी है और जो वो प्रोड्यूस कर पा रही है, वो दोनों का यहाँ पे डिटेल लिखा है, कैपेसिटी और वो जो प्रोड्यूस कर पा रही है. तो मैंने बाद में जितना रिवेन्यू वो जनरेट कर रही है इस प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट में से, तो उसका मैंने रेट निकाला है. तो मतलब पहला प्रोसेस है कि टोटल कैपेसिटी कितना है, दूसरा स्टेप है कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, और तीसरा कि कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है. तो मतलब पर्टिकुलरली फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट्स एंड अलाइड बिजनेसेस, मतलब फर्टिलाइजर ही सिर्फ, और दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन, 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है. ओके. हाँ. और उनके जो प्रोड्यूस्ड है, मतलब जितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसका मैंने रेट निकाला है. और उसके बाद वो जितना कैपेक्स कर रहे हो, कितना कैपेक्स यूटिलाइज हो सकता है ओवर द 3 years, उसके हिसाब से मैंने उसका रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, मतलब फ्यूचर का, उस रेट से मल्टीप्लाई करके. यस. ओके. तो अभी ये मॉडल डिटेल में देखता है, राइट? हाँ सर. नहीं, मैं गौरव से पूछ रहा हूँ. गौरव, ये मॉडल डिटेल में देखेंगे, राइट? हम मतलब यू वांट टू सी ऑल द स्टेप्स एंड कैलकुलेशंस, राइट? क्या? ठीक है सोनाक्षी, गो ऑन. यस सर. तो ये टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. तो यहाँ पे 3.3 मिलियन टन, सर यहाँ पे 3.6 होना चाहिए था, गलती से. ओके. एंड 0.9, और ये ठीक है, ये छोड़ो. ये टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और जितना प्रोड्यूस्ड है वो 3.3, 0.86, 0.6 एंड 5.1 MT है. यूटिलाइजेशन 92, 96, 67, 23% है. मैंने क्या किया है कि जो रिवेन्यू जनरेट कर रहा है न्यूट्रिएंट एंड अलाइड बिजनेसेस एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, ये 2 डिवीजन किया है टोटल रिवेन्यू का. तो यहाँ पे जो रिवेन्यू न्यूट्रिएंट्स में से हो रहा है और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अब इसका कैपेसिटी कहाँ से आया है, ये फर्टिलाइजर, एसएसपी और बायो, बिकॉज सीपीसी मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन. तो ये तीनों का जो टोटल यूटिलाइजेशन है, जो हो चुका है यूटिलाइजेशन, वो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ रिवेन्यू लिखा है. तो उसमें से जो रिवेन्यू पर कैपेसिटी जनरेट हो रहा है वो 0.65 है. क्रॉप प्रोटेक्शन में जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है पर उनका 60,000, ये जो यूटिलाइज कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनका जनरेट हो रहा है 4.39%. फिर उसके आगे उन्होंने बोला था, हाँ आई नो, वन फीडबैक टू यू, ये परसेंट नहीं होता है, दैट इज बेसिकली रुपीस पर मेट्रिक टन. ठीक है? तो परसेंट क्यों होगा ये? योर न्यूमरेटर इज इन करोड़, योर डिनोमिनेटर इज इन मिलियन मेट्रिक टन. तो तुम क्या डिवाइड कर रहे हो? तुम रुपी पर मेट्रिक टन का एक फिगर निकाल रहे हो, राइट? बट यू आर शोइंग इट एज अ परसेंट. परसेंट नहीं होगा. परसेंट होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम यूनिट होता है, राइट? सो यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय सेइंग इतना रुपीस पर मेट्रिक टन. वो तुम बाद में चेंज कर देना.
ओके सर। ये अभी करोड़ में दिखा रहा है तुमको, ये जो 0.006 ये ऐसे दिखा रहा है, दिस इज करोड़ पर मिलियन मेट्रिक टन यस सर, गॉट इट। दिखा रहा है, राइट? या करोड़ पर टन दिखा रहा है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ओके सर। ओके। और सर एक्चुअली अभी वो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में, तो वो 1650 मेट्रिक टन पर डे आएगा। आई नो कि ये एज अ रॉ मटेरियल जाएगा फर्टिलाइजर में, तो ये बेटर मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अभी उसका परसेंटेज नहीं पता है कि कितना वो बेटर मार्जिन कर सकता है। तो मैंने अज्यूम किया है, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज रॉन्ग, कि जितना इसमें प्रोडक्शन होगा उतना एटलीस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने यहाँ पे उसका ऐड किया है। सो शुड आई गो फर्दर विद दिस? मतलब जितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा उतना एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बनेगा। यस। एक्स्ट्रा क्यों बनेगा? वो तो ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होंगे ना, पहले वो कहीं से खरीद रहे होंगे, अभी वो खुद बना रहे होंगे। Isn't that the case? यस सर, तो मैं वो इसलिए कंफर्म करना चाहती थी कि आई शुड गो विद दिस और या फिर मैं ये रहने दूं। नहीं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो एक रॉ मटेरियल है, उसको खुद घर पे बनाने से तुम सेल्स में क्यों, उसको न्यूट्रिएंट्स का सेल्स क्यों बढ़ जाएगा? न्यूट्रिएंट का सेल्स तो डिमांड पे डिपेंड करेगा। तुम उसको बनाने के लिए कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो, अपना बनाया हुआ या बाहर से खरीदा हुआ? दैट विल चेंज योर ग्रॉस मार्जिन अ लिटिल बिट, ओके। राइट? यस। या तो आई डोंट थिंक सेल्स में कोई इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इसके वजह से मैं अभी इसको हटा दिया इसमें से, तो इधर भी चेंज हो गया है। तो मैंने फिर बाद में सर न्यूट्रिएंट्स एंड अलाइड अदर बिजनेसेस में मुझे अब पता नहीं था कि मैं अब आगे कैसे बढ़ाऊं इसे, एंड बिकॉज सब्सिडी भी रिड्यूस होने वाला है, एंड FY 2023 में बहुत बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ द हायर सब्सिडी। तो इसके लिए मैंने 2024 में FY 2022 को बेस लिया था, बिकॉज कंपैरेटिवली इट इज लाइक वाइबल देन द FY 2023, और उसमें से 1.06% का ग्रोथ रेट लिया हुआ है कि 6% ग्रो होगा, बिकॉज कंपनी ने मेंशन किया था कि दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 6% ग्रोथ इन द बिजनेस इन द टॉप लाइन। तो वो एजम्पशन बेसिस पे मैंने 6% ग्रोथ रेट लिया है, 30.86, बिकॉज वो FY 2023 से कम हो रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट अलाइड बिजनेस में मैंने फिर वो किया। आई डोंट नो हाउ टू मॉडल इट, बिकॉज यहाँ पे सब्सिडी भी अब कम होगा इन द फ्यूचर, और EBITDA पर टन से कितना टन ऐड होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। ये जो नंबर है, दिस इज द पोस्ट सब्सिडी नंबर क्या, जो तुम प्रोजेक्ट कर रही हो, मतलब विदाउट सब्सिडी? ये वाला नहीं, विद सब्सिडी है। अच्छा, विद सब्सिडी है। हाँ, इसके लिए मैंने FY 2022 लिया इंस्टेड ऑफ FY 2023। अच्छा, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि सब्सिडीज विल गो बैक टू FY 22 लेवल्स? हाँ, द लीस्ट, बिकॉज अभी प्राइसेस गिर रहे हैं पर ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, तो FY 2022 वुड बी द सेफर ऑप्शन राइट नाउ। तो जो बजटरी एलोकेशन तुमने दिखाया FY 24 का, उसको अगर तुम 22 से कंपेयर करोगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि कंपैरेटिवली सेम है सर। FY 22 में वो 11 लाख का था और अभी 10 लाख समथिंग करके है, तो कंपैरेटिवली सेम है, इसीलिए मैंने FY 2022 लिया। ठीक है, देन योर लॉजिक सीम्स ओके, एंड 6% अगर कंपनी ने बोला हुआ है, ठीक है, देन वी कैन गो विद इट। तो वो 6% ग्रोथ रेट ही लिया है फिर मैंने इधर। और क्रॉप प्रोटेक्शन में एज द यहाँ पे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 84% है अप टिल 2025, जो कंपनी ने अभी मेंशन किया था, एंड उसके हिसाब से 4 ईयर CAGR लिया है मैंने 2023 टू 2019, मतलब ये CAGR है 4 साल का पिछले। सो बिकॉज अभी क्रॉप प्रोटेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसे 3 साल लगेंगे ऑनलाइन आने में, कमर्शियलाइज होने में, तो इसके लिए आई कैन जस्ट अज्यूम कि वो अभी कितना इंक्रीज होगा। तो इसके लिए मैंने CAGR लिया फॉर द लास्ट 4 इयर्स। अभी FY 2023 में इतना कम इसीलिए है बिकॉज मैंने बोला था कि प्राइस बढ़ गया है, राइट? तो जो फार्मर्स है कट डाउन करने के लिए अपना कॉस्ट, वो लोग क्रॉप प्रोटेक्शन में थोड़ा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें ग्रोथ कम था, बट ओवरऑल आई थिंक 9.97% वो ट्रैक्शन आ जाएगा FY 2024 में। एंड सेम मैंने यहाँ पे भी वही अप्लाई किया, 4 ईयर CAGR कमिंग बैक टू नॉर्मल रेट, जैसे 23-20 इतना है, तो अभी एटलीस्ट 14 तक 2025 तक आ जाना चाहिए एज द प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड द
growth will happen. यहाँ पे FY 2026 में मैंने हाफ ईयर का कैपेक्स ऐड किया है, मतलब एक मिनट, इसका कुछ डाला नहीं, हाँ ये रहा, कैपेसिटी यूटिलाइजेस 84% अप टिल 2025. एक मिनट, यहाँ पे यू कैन सी कि 67% यूटिलाइजेशन है सीपीसी का, राइट? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय 2026 वो लोग कम से कम 80 to 84% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से मेजर किया है. प्लस हाफ ईयर का कैपेक्स, वो जो मैंने बोला था 2000-3000 करोड़ का इन FY 27 उनका रियलाइज होगा रिवेन्यू. तो उन्होंने बोला था कि 18 to 24 मंथ में आ जाएगा. तो इवन आफ्टर 2 years एटलीस्ट 6 मंथ के लिए FY 26 में वो जनरेट कर सकता है रिवेन्यू. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने प्लस 1000 करोड़ किया है. 2000-3000 बोला था, तो दैट्स व्हाई आई गेट 1000. 2000 डिवाइड बाय 2 फॉर द हाफ ईयर. ओके. अच्छा, एक बेसिक और क्वेश्चन है सोनाक्षी विच यू नीड टू नोट डाउन. मैं जब स्क्रीनर पे देख रहा हूँ तो इनका क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीजन सीम्स लाइक कि टोटल रेवेन्यू का 10% ही नहीं है, ठीक है? लेकिन आई थिंक दैट इज बिकॉज न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट में सब्सिडी इंक्लूड हो रहा है, राइट? मतलब तो अगर सब्सिडी हटा दो तो न्यूट्रिएंट्स और इसका रेवेन्यू का कितना क्या स्प्लिट है वो भी आपको यू शुड प्रेजेंट दैट. ओके सर. ठीक है. या ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है. मतलब तुम 67 से 84% कैपेसिटी पे जा रहे हो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सर एक मिनट में क्वेश्चन लिख रही हूँ. हाँ ठीक है. ओके. सो ओवरऑल रिवेन्यू का ग्रोथ ये ट्रैजेक्टरी रहेगा. इट विल रिड्यूस इन FY 2024 एंड देन अगेन गेन द ट्रैक्शन ओवर द टाइम. Here is the financial model. यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट मैंने अभी ये लास्ट 2 ईयर FY 22 एंड FY 2023 का एवरेज लिया है, बिकॉज अभी सिर्फ प्राइस थोड़ा नीचे आया है, उतना डिक्रीज नहीं हुआ है. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक अभी भी वो अफेक्ट करेगा. सेकेंडली उनका जो इन्वेंट्री है वो अभी हायर प्राइस कॉस्ट पे है, एंड बस बिकॉज ऑफ दैट उनको मार्जिन में अफेक्ट होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट 77% FY 2024 में अज्यूम किया है. For FY 2025, I'm expecting it will get normalized again. तो मैंने इन years का एवरेज लिया है for the FY 2025. In FY 2026 मैंने नॉर्मल years का लिया है एवरेज. यहाँ पे सर जो सल्फ्यूरिक प्लांट आ रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए जो बेटर मार्जिन होगा, ये अभी गैस कर पाना बहुत मुश्किल है यार. मतलब उसको तो विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन, मोर बेसिक नॉलेज, यू कांट जस्ट प्लग इन अ नंबर देयर. तो उसको छोड़ दो. मतलब यू कैन जस्ट मेक अ नोट इन वो जो येलो वाला नोट है उसमें तुम एक पॉइंट लिख के रख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड कैपेसिटी ऑनलाइन इस साल में आएगा, उसका ग्रॉस मार्जिन पे कुछ लोअर इम्पैक्ट हो सकता है. कितना वो अभी पता नहीं. और एक और चीज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जून क्वार्टर में इनका मटेरियल कॉस्ट वाज 74%. अभी का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया. हाँ मैंने देखा सर, बट मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही हूँ 77%, बिकॉज उनको हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में बेटर एबिटा पर टर्न होता है सर. सो लेकिन लेटर उनका मटेरियल कॉस्ट विल बी इफेक्टेड बिकॉज ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट. तो मैंने फॉर द सेफर साइड 77 लिया है. मेक सेंस. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज क्वाइट कांस्टेंट, तो वो सेम ही लिया है मैंने, एवरेजेस ही लिया है यहाँ पे. फिर इसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन का इम्पैक्ट मेनली इट इज बिकॉज ऑफ मटेरियल कॉस्ट. अदर इनकम उनका 129 लास्ट क्वार्टर के हिसाब से मैंने एक्चुअली यहाँ पे एवरेजेस लिए हैं, बिकॉज उनके अदर इनकम हैज बीन क्वाइट कंसिस्टेंट. उनका इन्वेस्टमेंट है दूसरी कंपनीज में, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग दैट डिविडेंड एंड एवरीथिंग. तो मैंने ये एवरेजेस लिए ओवर द लास्ट ईयर्स. डेप्रिसिएशन वेल यहाँ पे रहा, यहाँ पे बिगनिंग एसेट कैलकुलेट किया है. नेट ब्लॉक प्लस जो डेप्रिसिएशन होता है उससे हम बिगनिंग एसेट आता है, तो यहाँ पे मैंने वैसे कैलकुलेट किया है. सो लास्ट जो नेट ब्लॉक होगा उस वो मेरा 2024 का बिगनिंग एसेट होगा प्लस 400, बिकॉज उनका कैपेक्स अभी रियलाइज होगा 2024 में. तो उसके वजह से प्लस 400 दैट वुड बी द बिगनिंग एसेट. डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन 8% ऑफ द लास्ट नेट ब्लॉक प्लस
जो 400 का कैपेक्स है वो 3 मंथ के लिए अज्यूम किया है, इसलिए इंटू 3/12, तो वो वैसे कैलकुलेट किया है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड जितना डेप्रिसिएशन यूटिलाइज होगा, एंड देन द नेट ब्लॉक इज कैलकुलेटेड। वैसे ही आगे भी मैंने कैलकुलेट वैसे ही किया है। यहाँ पे FY 2026 में एज वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 महीने के लिए फंक्शनल हो जाएगा वो तीनों प्लांट, तो उसके हिसाब से एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 1000 का कैपेक्स विल बी यूटिलाइज, तो 18 to 24 मंथ में आई अज्यूम कि 1000 इज एडेड टू द बिगनिंग असेट, एंड बेस्ड ऑन दैट वो मैंने हाफ ईयर के लिए डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया उस पे, एंड दैट्स हाउ आई कम विद द डेप्रिसिएशन। राइट, तो कितना आ रहा है FY 24 का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 176। 176। अच्छा, Q1 में 50 करोड़ का डेप्रिसिएशन था। तो मतलब उससे घटने का तो कोई चांस नहीं है सोनाक्षी, क्योंकि घटेगा तभी जब एसेट सेल होगा कोई, या घटेगा तभी जब नेचुरल डेप्रिसिएशन की वजह से आगे जब डेप्रिसिएशन कम होगा, अगर एसेट बेस विल कीप रिड्यूसिंग, बट इतना रिड्यूस होगा कि नहीं, जस्ट टेक अ कॉल। ठीक है, 10-20 करोड़ का फर्क है, मतलब बिग पिक्चर देखना है हमको, क्योंकि इस कंपनी को अब हमें उतने लेवल पे हम समझते ही नहीं है कि 10 करोड़ के लिए अभी वी स्टार्ट ट्वीकिंग द मॉडल, बट जस्ट लेटिंग यू नो। ओके ठीक सर। है, ओके चलो। और सर इंटरेस्ट रेट मॉडल में आपके हेल्प चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंपनी यार का अभी के लिए ना, लेट्स गो विथ जो तुम्हारा Q1 का जो है उसको अगर तुम एनुअलाइज कर दो, तो लेट्स गो। 163 है। हाँ, ये तो डेट फ्री कंपनी है ना? अच्छा, नहीं इनका है कुछ डेट। ओके सर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इस कंपनी में कि यहाँ पे उनको डेट की बोरोइंग्स नहीं है, बट हाँ, उन्होंने लीज कुछ लायबिलिटीज है, लीज यस लायबिलिटीज। हाँ, यस तो लीज लायबिलिटीज पे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड यील्ड आना चाहिए, तो हाँ वही 200 करोड़ ले लो यार, दो ले लो साल ना। से लगभग उतना ही है। हाँ हाँ, हाँ, तो मैंने 190 लिया हुआ है। हाँ 190, वो थोड़ा थोड़ा 5-5% बढ़ा दो उसको अगले अगले साल में, मतलब लीज बेसिकली रेंटल होता है, ठीक है? हम्म तो मतलब कुछ 5-10% बढ़ेगा, ठीक है, 5% बढ़ा के अभी छोड़ दो। ठीक है। हो गया। फिर यहाँ पे फिर उसका नेट प्रॉफिट मैंने टैक्स लिया 25% बिकॉज वो आसपास 25 ही है, और उनका NPM मार्जिन इज लाइक दिस, उनका नेट प्रॉफिट। तो मतलब अगले साल तुम्हारे हिसाब से हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि ये गंदा डिप आने वाला है अगले साल? सर मैं एक्चुअली द रीजन फॉर दिस डिप इज ओनली इन्वेंटरी कॉस्ट, जो मैं अभी दिमाग में वही लेके चल रही हूँ, नहीं, बिकॉज नॉट उनका ओनली इन्वेंट्री कॉस्ट ना, नॉट ओनली इन्वेंट्री कॉस्ट, तुम्हारा वो जो प्राइस जो नीचे जा रहा है उसके वजह से तुम्हारा EBITDA पर टन, ग्रॉस मार्जिन पर टन सब इफेक्ट हो रहा है ना। जो हाँ सब जो तुमने ही बोला था ना कि जब सब्सिडी जब बढ़ गया था तो उनका EBITDA पर टन, ग्रॉस मार्जिन टन वो सब भी बढ़ गया था, यस यस बट वो सब भी कोलैप्स कर रहा है ना अब जब हाँ रिवर्स हो रहा है। हाँ तो इफ यू कंपेयर विद FY 22 के कंपैरिजन में FY 24 में दी ओनली इम्पैक्ट शुड बी ग्रॉस मार्जिन, बिकॉज बाकी assumption, सब्सिडी assumptions आर सेम, राइट? फॉर यू तो तुमने कितना 3% का फर्क लिया है, 3% का 75% कितना होता है? 2.25%। तो हाँ, लगभग 5.5 और 8% में 2.5% का डिफरेंस है। तो ठीक है, FY 22 एंड FY 24 में जो गैप है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ग्रॉस मार्जिन, बट यस FY 23-24 में जो गैप है दैट हैज अ डुअल इम्पैक्ट, राइट? दैट हैज ग्रॉस मार्जिन आल्सो एंड दैट हैज, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन पर टन और ये सब घट रहा है, राइट? यस वो भी हो रहा है। So how confident are you about this? And I would also like Gaurav's thoughts on this कि मतलब क्या सोच रहे हो तुम इसके बारे में? अगर ऐसा है तो then this stock is not cheap. यस अभी काफी ट्रैक्शन ऑलरेडी आ चुका है प्राइस में। सर इसमें मैं इसलिए इतनी कंफ्यूज थी मॉडल में, प्रॉब्लम है कि उन्होंने अभी काफी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, बट अभी उसके नंबर्स नहीं पता है। अभी जैसे नैनो डैप है वो कमर्शियलाइज करने की बात कर रहे हैं, अगर वो कमर्शियलाइज होता है तो यहाँ पे सब नंबर बदल जाएंगे। एंड जैसे ड्रॉन है, मैंने उसका 165 करोड़ ऐड नहीं किया है यहाँ पे। नहीं, but सोनाक्षी शुड आई नहीं, हाँ before going to all those things that we don't know, जो यस चीज तुम्हें पता है कि सब्सिडी कम होने वाला है उसका मॉडलिंग करेक्ट हुआ है कि नहीं, फर्स्ट वी नीड टू गेट टू दैट। कि सर मान लो, एक्चुअली दिस नंबर्स सॉरी
मतलब ये जो नंबर्स है इनके लिए मैं श्योर हूँ, बट अच्छा बाकी का नहीं है पता। नहीं ठीक है, बाकी मतलब अगर कुछ नया कमीशन हो गया उससे रेवेन्यू आ गया वो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस एज इट इज अगर चला हम्म तो ये नंबर डू यू थिंक कि ऐसा डिप आएगा FY24? आई थिंक आएगा। क्योंकि Q1 का नेट प्रॉफिट कितना था, Q1 में इन्होंने 500 करोड़ कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ तो तुम बोल रही हो कि अगले पूरे साल में 700 करोड़ ही नेट प्रॉफिट आएगा 3 क्वार्टर में। तो ये इनके कौन कौन कॉल में डिस्कस हो रहा है क्या ये सब चीज की इन्वेंट्री लॉस होने वाला है, ये सब ऑल नहीं दिस थिंग? नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा। यार, तो फिर देखो, मतलब एक चीज जो होता है ना फर्टिलाइजर का, ये रेनफॉल होने से पहले खरीद लिया जाता है। हम्म मतलब रेनफॉल डिपेंडेंट नहीं होता है फर्टिलाइजर। फार्मर पहले फर्टिलाइजर लेता है, फिर मतलब अपने सॉइल में डालता है, फिर जाके सीडिंग करता है, राइट। हम्म और इनके मतलब सेल्स सितंबर और दिसंबर में ज्यादा होता है जनरली फ्रॉम जुलाई जून, तुम अगर ट्रेंड देखोगे। एंड देन मार्च में कम होता है थोड़ा। हम्म तो आई फील दैट सेल्स नंबर थोड़ा सा अलग होगा, मेरे को लगता है। बट अगेन यू आर आल्सो, मतलब आई एम आल्सो, मतलब मेरा जो अजम्पशन है ये 100% करेक्ट है कि मेरे को भी पता नहीं। एंड ऑफ कोर्स आई मीन मार्केट आल्सो आई थिंक इज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये भी इसीलिए लो वैल्यूएशन में चल रहा है। सर एक्चुअली यहाँ पे सीजनैलिटी की मैंने इसलिए बात की थी कि फर्स्ट क्वार्टर में उनका हमेशा बेटर परफॉर्मेंस रहता है एंड आफ्टर दैट देयर परफॉर्मेंस गो डाउन। तो उसके हाँ, हिसाब तो से एबिटा पर मेट्रिक टन जैसे देख रहे हो सेल्स में। अच्छा, यू आर लुकिंग एट एबिटा पर मेट्रिक टन, ओके ओके। हाँ, तो मैं सेल्स के हिसाब से बोल रहा था। अच्छा यार निर्वाण, वी हैव टू थिंक ऑन द वैल्यूएशन पार्ट ऑफ इट। मतलब ये मेरे को पता नहीं कैसे सोचूं इसके बारे में। हाँ बट मतलब ये जो बेसिकली सोनाक्षी यू टेकन अ वेरी बिग कॉल बाय सेइंग कि प्रॉफिट हाफ हो जाएगा। बट हम्म मेरे ख्याल से अगर इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से इतना प्रॉफिट या तुम्हारा सब्सिडी कम होने की वजह से अगर इतना कंप्रेशन होता तो इट वुड हैव शोन अप इन एनालिस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का प्रोजेक्शन चेक करो, वो डिस्कस करो। जो अलग अलग है, मैंने अभी जो ये वाला रिपोर्ट था जिनका इनका देखा था, इसमें भी उनका ड्रॉप था सेल्स में। इट वाज अराउंड लाइक, एक मिनट, उनका तो ये वाले नंबर्स में था 14,000 के आसपास। 14,000 सेल्स प्रोजेक्ट कर रहे हो फॉर मतलब उसी FY24? के आसपास था। इट वाज नॉट इवन इन लाइक टू अच्छा, टू नहीं था, वन था यहाँ पे। शेयर सो कर दो ब्रोकरेज रिपोर्ट भी, हम लोग भी एक बार पढ़ते हैं। हम्म तो बेसिकली मतलब ये इसका तुमने मेन रिसर्च अपार्ट फ्रॉम द कंपनी डॉक्यूमेंट तुमने कहाँ कहाँ से किया, वैल्यू पिकर एंड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स या? वैल्यू पिकर, ब्रोकरेज रिपोर्ट, कॉनकॉल्स और ऐसे ही देखा सर। और अच्छा मैंने तो जो वीडियोस शेयर किए थे वो। ओके। और यहाँ पे कोई इन्वेंट्री लॉसेस की बात नहीं कर रहा है या सब्सिडी की वजह से ग्रॉस मार्जिन पर टन, एबिटा पर टन कंप्रेशन की बात कोई नहीं कर रहा है? कोई कर नहीं रहा है, बट एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ रीड किया, बिकॉज ऑफ दैट इट ट्रिगर्स मी कि हाँ इन्वेंट्री लॉसेस होंगे। उन्होंने मेंशन किया था कि जब कंपनी का इन्वेंट्री रहता है तो नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स इट विल बिकम द मटेरियल कॉस्ट फॉर द कंपनी, तो उसके करेक्ट। वजह से उनको हर्ट होगा फॉर द मार्जिन। तो ये मैंने कहीं रीड किया है। सो मे बी वैल्यू पिकर, नहीं बट बट एक बात बताओ सोनाक्षी, एक एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे सब्सिडी है, ठीक है। तो यस सर। जब जब हाई इन्वेंट्री खरीदा था उसने, ठीक है, तो सब्सिडी की वैल्यू भी हाई थी, तो जो नेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री था वो कम था, हम्म करेक्ट। तो अब जब सब्सिडी का वैल्यू गिर रहा है उसके साथ साथ प्राइस का भी वैल्यू गिर रहा है, तो वो डेल्टा जो है वो उतना, उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा शायद थोड़ा सा, हम्म जितना उनको विनफॉल गेन हो गया था उतना पड़ेगा, बट मे बी द डिफरेंस विल नॉट बी दैट। अच्छा सो बेसिकली जो मेरे को समझ में आता है इनके बिजनेस में, the subsidy मतलब government will allow them to just have like 8 to 9% margin। ये सब फर्टिलाइजर मतलब एटलीस्ट यूरिया वाले फर्टिलाइजर में, नॉट द अदर वन। दूसरे में तो कोई ये नहीं है। पर और एक चीज है जो कि इनके कॉन कॉल में ये बोला था कि ड्यू टू डिलेड मॉनसून ना, थोड़ा सा मतलब जून क्वार्टर में वो कंसिडर नहीं हुआ है, एंड दैट वेंट इन दी जुलाई क्वार्टर। समझे, मतलब जो फर्टिलाइजर का सेल है ना, वो थोड़ा सा जून से जुलाई की तरफ चला गया।
बिकॉज थोड़ा सा डिले के चक्कर में, इनके कॉन कॉल में ही है, ये जुलाई में किया था 28 को। तो मे बी दैट सेल्स नंबर, आई मीन यू कैन बी आल्सो करेक्ट। आई मीन मेरे को at this point there's no right answer to it, and it's very good that you have actually given this perspective. मैं तो बहुत बुलिश हो रहा था इसमें, अभी थोड़ा सर इवन आई एम कंफ्यूज्ड, इसके लिए मैंने निर्वाण सर को बोला था कि आई नीड हेल्प। कोई बात नहीं, this is so सोनाक्षी, this is a live case study, you see how it will pan out in the next 1 year, और तुमको इससे इतना अच्छा नॉलेज आ जाएगा ना फर्टिलाइजर का, then you can play this cycle every time, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। you study this, since you have figured it out ना, you see whether your assumptions are correct or not, and you let us know, even if you are not working with us. और जो पॉइंट मैंने बोला ना उस पे भी सोचो, ट्राई टू सी कि दैट एक्सप्लेन्स इट, ठीक है? मतलब क्योंकि नॉर्मल केस में यू आर राइट, इन्वेंटरी लॉस होगा, बट जहाँ पे सब्सिडी है बफर मारने के लिए वहां पे शायद ना हो। सर मेरे हाँ एक्चुअली देखा जाए तो उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब वो मटेरियल परचेज करते हैं तभी उनको सब्सिडी मिल जाती है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो फिर उनका रिसीवेबल डेज 30 डेज है इनके, रिसीवेबल डेज, इन्वेंटरी डेज सॉरी। हाँ तो हाँ, तो मतलब इसको एक बार रीथिंक करो, थोड़ा और पढ़ाई करो इस पे, एंड देन मे बी यू नो वी हैव अनदर 15 मिनट डिस्कशन विद इफ देयर आर एनी मेजर न्यू लर्निंग, ठीक है? और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी एक दो जो भी तुमने देखा है ना ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दो। ओके सर। और जो क्वेश्चन गौरव और मैंने दिए वो होपफुली नोट कर लिया ना तुमने? हाँ मैंने नोट किया सर। हाँ, तो टेक योर टाइम विद दीज थिंग्स, थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, एंड देन मे बी जब भी तुम रेडी हो 1-2 हफ्ते में 15 मिनट का वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। ओके सर। सर वन ऑफ द रीजन एक्चुअली यहाँ पे मार्जिन ज्यादा हिट हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉस्ट। आप नोटिस करो तो यहाँ पे रिवेन्यू ज्यादा था, इसलिए इंटरेस्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, अदरवाइज यहाँ पे मार्जिन बेटर होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो अफेक्ट हुआ इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉस्ट। बाकी यहाँ पे ये मार्जिन तो नॉर्मलाइज्ड है ऐसे देखे तो। हाँ मतलब ठीक है, बट तुम्हारा ऑपरेटिंग मार्जिन भी तो गिर रहा है ना 1.5%। हाँ दैट्स अ बिग फॉल ना। मैं तुम एक देखती हूँ चीज चेक करो ना, एक सिंपल चीज चेक करो, कोरोमंडल के 10 साल के हिस्ट्री में कभी 8% मार्जिन गया है क्या? लेट्स गो बैक। ओके। हाँ गया है, लेकिन 2017 के बाद से कभी नहीं गया है, ठीक है? तो मे बी अनदर थिंग यू कैन डू इज, जिस साल 7% हुआ था मार्जिन उस साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो 2016 का। ओके। कि 2016 में क्या हुआ था, समझ में आ जाएगा तुम्हें। हाँ सर देखती हूँ। ठीक है, ये लाइक गौरव सेड दिस विल बी अ रियल लाइव केस स्टडी फॉर यू। और मतलब तुमने जब इतना एफर्ट मारा ही है इतने कॉम्प्लिकेटेड कंपनी को समझने के लिए, तो कीप दैट इंक्रीमेंटल एफर्ट हैपनिंग, ये सेक्टर समझ में आ जाएगा तुम्हें। यस सर। ठीक है, no more questions from my side. Thanks Sonakshi, this was a great effort on this. It's a tough company to new sector to analyze, so I learned a lot of things. Thanks. Even I did. Very good presentation, very nice. Also deliveries are pretty okay, मतलब लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, एक्चुअली दे आर टेकिंग, मतलब डिलीवरी तो ले रहा है। 56% ऑलमोस्ट ट्रेडेड क्वांटिटी था उसमें से 56 ऑलमोस्ट 5 लाख ट्रेडेड क्वांटिटी में 56% डिलीवरी ले रहा था। And also big brokerage houses are also talking about it, even our dada is talking about it, so I'm hopeful. आज ही भेजा, सरप्राइजिंग था बहुत। हाँ आज एनुअल, मतलब वो एनुअल रिपोर्ट तो बहुत सारा एनालाइज कर रहे हैं यार गौरव, वो मतलब I have seen him do many. I don't know whether those are part of his watch list or not. कुछ तो होगा, थोड़ा इंटरेस्ट तो होगा ना, मतलब that he is putting time, माने कुछ होगा। या रैंडम